Hello students, welcome to the second session of metallurgy. Second session में हम डिस्कस करेंगे chemical properties of metals. Okay, students, basically metals are electropositive. Why? Why metals are electropositive? Because metal have ability to lose the valence electron. Just like sodium is a metal. You know the atomic number of sodium. Atomic number of sodium is 11. When you draw the electronic configuration, so capacity of first shell is 2, second shell is 8. So there are total 11 electrons. So first 2 electrons place in first shell. Now second shell 8 and the last shell is 1. Okay. What is valency? Number of electrons required to complete its octet of last shell. So here sodium required 7 more electron to complete its octet. ओके कि यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. सो बेस्ट वे वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ओके, और आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जैसे हमें पता है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. मतलब जैसे कि हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. Okay, so sodium atom having 11 proton and 11 electron, that is 11 positive charge and 11 negative charge. Okay, the whole charge is neutral, that is 0. But after losing one electron, sodium के पास रहेंगे 10 electron, but protons are same. So here 11 positive charge and 10 negative charge. So we get one positive charge on sodium after losing one electron. So here sodium acquire plus charge. Okay. One more thing, the electrons present in last shell of atom, metal atom, they are very loosely bonded with the nucleus of metal. Okay, this is also the another reason to lose the valence electron. Okay, इसके वजह से metals क्या हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए. मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए. Almost all metals are electropositive. Now the second part, metals are reactive. Okay, metals काफी reactive होते हैं, but उसमें भी 3 levels होती है. कुछ metals जो होते हैं बहुत more reactive होते हैं, बहुत ज्यादा reactive होते हैं. कुछ metals moderately मतलब averagely reactive होते हैं, and some metals are less reactive. Okay, so students, reactivity series most important for स्पेशली रिएक्टिविटी सीरीज हमारा केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमें सबसे पहले इनकी लिस्ट को पता करना है कि कौन से मेटल कितने रिएक्टिव है. जैसे कि अगर हम मोर रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करेंगे, सो मोस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल्स है कि लाइक अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम है, सोडियम है, आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, दिस आर दी मोर रिएक्टिव मेटल्स. अंडरस्टूड, ये हमारे मोर रिएक्टिव मेटल्स है. नाउ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हमारा मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन है. ओके, ये लिस्ट हमको पता होना जरूरी है बिकॉज मेटल्स एक एसिड्स के साथ में सेम रिएक्शंस नहीं देंगे, या सारे मेटल्स वाटर के साथ में सेम रिएक्शंस नहीं देते, बिकॉज the reactivity is based on reactivity with the different chemicals is based on the reactivity of metals. okay, कौन से मेटल्स कितने रिएक्टिव है, कम है, ज्यादा है, उस बेसिस पे हमें आउटपुट्स मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलता है. ओके, नाउ SB, SN, so here is a lead, here is a PB lead, then stannous etc. These are the moderately reactive metals. and least reactive metals में हमारा आएगा Au gold, now platinum, okay, silver, these are the less reactive. mercury, ये हमारे less reactive metals में आते हैं, इनकी reactivity, and copper also. okay, so these are the less reactive metals. अब हमें इसको याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज
ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमें रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन हम देखेंगे कि मेटल्स की पहली रिएक्शन हमारी ऑक्सीजन के साथ में होगी। ओके, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में कैसे ट्रीट करते हैं। सेकंड हम वाटर के साथ में रिएक्शंस देखेंगे और थर्ड हम एसिड्स के साथ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर हमारा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बिकॉज वो इजीली लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। फिर मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी, मोर रिएक्टिव, एवरेजली, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट कि इस बेसिस पे अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करनी है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ में क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर हमारे मेटल्स वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और एसिड्स के साथ में हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, चलो द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन दैट इज O2। इसी को हम स्टूडेंट्स कंबशन भी कहते हैं। ओके, कंबशन किसे कहते हैं? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर आप बर्न करते हो तो उस ओपन एयर में अगर आप बर्न करते हो तो वो कंपाउंड बर्न होते हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और बर्निंग होती है, इसी को हम कंबशन कहते हैं। ओके, तो सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमारा मेटल है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। ओके, अब वो चाहे मोर रिएक्टिव हो या लेस रिएक्टिव हो, सॉरी मोर रिएक्टिव हो या मॉडरेटली रिएक्टिव हो, मोस्ट ऑफ टाइम ऑक्सीजन जो है हमारा लेस रिएक्टिव, जैसे कि गोल्ड है, कॉपर है, लाइक प्लैटिनम है, सिल्वर है, इनके साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे हम जो रिएक्शंस देखने वाले कौन से मेटल्स यहाँ पे हम देखेंगे, एक मोर रिएक्टिव मेटल्स और एक मॉडरेटली, ओके, मॉडरेट मेटल्स के साथ में। ओके, चलो सो एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारा होगा लाइक मैग्नीशियम रिबन्स है, स्मॉल प्लेट्स अगर मैग्नीशियम के लेंगे, अगर हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सो दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ओके, सो ये हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शंस हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है सोडियम विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2O। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे MgO और यहाँ पे Na2O क्यों फॉर्म हो गया? बिकॉज मैग्नीशियम कैरी करता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर है -2 चार्ज। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का 2 और इसका भी हो गया 2। तो ऐसे सिचुएशन में अगर दो आयंस सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं तो उस वक्त उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई मल्टीपल्स नहीं आते, वी कैन राइट इन अ सिंगल like Mg one time and O one time. But in case of Na2O, here sodium carry +1 charge and oxygen carry -2 charge. So magnitude of this charge is 1 and here is 2. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो Na into 2 ये हो जाएगा Na2, O into 1 that is Na2O. Understood? Now the third is, यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे कि लाइक आप एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि कैल्शियम है, इसकी भी रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में करोगे सो वी गेट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड? ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लेबलिंग करेंगे कि दिस इज अ मैग्नीशियम, ओके, मेंशन हियर ऑक्सीजन। जब भी आप एग्जाम में इसको रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हियर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है सो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अंडरस्टूड? सिमिलरली दिस इज अ सोडियम, दिस इज अ ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम, दिस इज अ ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ हमें अभी रिएक्शंस को बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली वी कैन बैलेंस द ऑल द रिएक्शंस, ओके, लाइक दिस।
Okay, so now here is half of O2. Okay, similarly for this, so you can write here 2, here also 2. Okay, so ये हो गया हमारा मेटल विथ ऑक्सीजन। एक ही चीज याद रखनी कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो मेटल ऑक्साइड्स होगा। अब लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है, लेस रिएक्टिव मेटल्स जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी थी कि जैसे अगर प्लैटिनम है, ओके, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में नहीं होती, दैट इज नो रिएक्शन, इसकी रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ द नेक्स्ट थर्ड सेकेंड रिएक्शन हमारी वाटर के साथ में है। ओके, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। तो इसमें वन बाय वन कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल्स की। ओके स्टूडेंट्स, अब मोर रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि हमारे पास है सोडियम, अगर इसको हम वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ में वाटर की रिएक्शन अगर आप करोगे तो वहां पे हीट जनरेट होगी। रीजन क्या है कि यहाँ पे जब अगर सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल को आप वाटर के अंदर डालते हो सो दे क्रिएट एक्सप्लोजन, मतलब जैसे कि बर्निंग स्टार्ट होती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। जैसे कि अगर आप एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया हुआ है और उसके अंदर अगर सोडियम का मेटल आप डाल देते हो, बिकॉज सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अगर आप यहाँ पे पोटेशियम ले लोगे, रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ठीक है, वाई इज कॉलिंग अल्कली मेटल्स? ग्रुप नंबर 1 के जो मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसको अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि जब वो मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वो अल्कली फॉर्म करते हैं। अल्कली का मतलब क्या होता है? अल्कली मतलब बेस। 9th में आपने पढ़ा था बेस किसे कहते हैं? जिसके अंदर OH हो, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। तो यहाँ पे NaOH है आपका बेस अल्कली। इसके लिए इन मेटल्स को क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल, क्योंकि जब वो वाटर से रिएक्ट होते हैं तो वाटर से रिएक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं? अल्कली फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सोडियम वाटर से रिएक्ट हो गया, NaOH फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। तो हमारा सोडियम यहाँ पे है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो सोडियम हमारा सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है। ओके, और जब ये एक्वियस स्टेट में जाएगा, बिकॉज सोडियम हमारा वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा और ये हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। सेम ईयर पोटेशियम मेटल है, सॉलिड में होता है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा। ये वाटर आपका लिक्विड में है, यहाँ पे एक्वियस KOH फॉर्म होगा, मतलब वाटर के साथ में जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है, तो वो AQ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज अ गैस। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ मोर रिएक्टिव मेटल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो मोर रिएक्टिव मेटल्स, ओके, मोर रिएक्टिव मेटल्स विथ वाटर। अब ये आपका वाटर जो होगा लिक्विड स्टेट में होगा। रीजन क्या है बच्चों कि अगर आपके मेटल्स जो है मॉडरेटली रिएक्टिव है तो वो लिक्विड स्टेट में वाटर से रिएक्ट नहीं होते। ओके, दे फॉर्म अल्कली प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ठीक है, इसको आप याद रख लो कि हमारे पास अगर मोर रिएक्टिव मेटल्स है तो मोर रिएक्टिव मेटल्स लिक्विड स्टेट में वाटर से रिएक्ट होते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड स्टूडेंट्स हम देखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव। ओके, अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में अभी हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, दीज आर द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होते, दे रिएक्ट विथ स्टीम।
okay, react with steam. Steam means what? Water in gaseous state. ओके, जब वाटर हमारा गैसियस स्टेट में होता है तो उसको हम स्टीम कहते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर को हीट दोगे तो वो इवापोरेट होगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ व्हाट? वाटर। तो यहाँ पे जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से डायरेक्टली वाटर के साथ में कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन दिखाते नहीं है। अगर हमारा वाटर वेपराइज स्टेट में है जिसको हम स्टीम कहते हैं, सो वी कैन राइट हियर H2O, ओके, और ये आपका होगा गैस स्टेट में। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने देखो ऊपर हाइड्रोजन के सामने L लिखा हुआ है, H2O के सामने L लिखा हुआ है, दैट इज लिक्विड स्टेट। सो हियर इज अ गैस, सो यू कैन मेंशन हियर स्टीम। ओके, दे फॉर्म ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ओके, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। व्हाई? बिकॉज दिस मेटल्स आर लेस्ट रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मेटल्स क्या हो गए? लेस्ट रिएक्टिव हो गए, और यहाँ पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। और ये आपका जो मेटल ऑक्साइड्स होगा, ये मेटल ऑक्साइड्स आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, सी, अब यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम है सॉलिड स्टेट में। दिस इज एल्यूमिनियम प्लस वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो नाउ बैलेंसिंग दिस रिएक्शन, अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, इसके लिए स्टीम के साथ में ही उसकी रिएक्शन होगी। ओके, दैट इज वाटर इन गैसियस स्टेट। नाउ हियर इज अ 2 एल्यूमिनियम, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2। ओके, सो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 2 जा 6, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, हम आयरन के साथ में भी कर सकते हैं। Fe plus H2O in steam, okay, because here H2O in gaseous state, because iron is also what? Okay, we get Fe2O3, okay, plus thrice H2, and same here twice and thrice। okay, iron oxides form होगा। ओके, स्टीम के साथ में आयरन ऑक्साइड्स Fe2O3 एंड H2O फॉर्म होगा। अब आयरन के साथ में एक और ऑक्साइड, दूसरा भी ऑक्साइड है, वो भी है, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे Fe2O3 है और एक आयरन ऑक्साइड का दूसरा भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बट लाइक वहां पे अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सो नाउ एंड द थर्ड वन, जो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, जो थर्ड पार्ट है लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, ये जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ये वाटर के साथ में, चाहे आपका वाटर गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में आपका वाटर हो, वो वाटर के साथ में रिएक्शंस नहीं देते। जैसे कि मैंने बताया कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ओके, प्लैटिनम है, दिस आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन विथ वाटर। ओके, इनकी रिएक्शन नहीं होती। तो 3 कैटेगरीज हमने मेटल की देखी थी। आपका मोर रिएक्टिव मेटल है, दे कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर एंड लिबरेट heat and hydrogen gas, okay, in the form of alkali. Now the second, moderately reactive metal react with water, they form metal oxides and hydrogen gas, but here the state, physical state of water is gas, that is called steam। ओके, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमने देखे, एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल देखा और एक आयरन का एग्जांपल देखा। ओके, ये हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। एंड नाउ द लेस रिएक्टिव मेटल्स के अंदर इनकी रिएक्शंस नहीं होती। डन, ये 3 चीजें हम याद रखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड पार्ट अभी हम देखेंगे। सी हियर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें हम 3 टाइप्स के एसिड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा मेटल है, ओके, मेटल रिएक्ट विथ HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल्स react with H2SO4, that is sulfuric acid, and metal react with nitric acid HNO3, okay,
नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में दैट इज H2SO4 के साथ में क्या रिएक्शन है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या रिएक्शन है, इसको हमें डिस्कस करना है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम HCl की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है मेटल क्लोराइड, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नाउ H2SO4 के साथ में देखेंगे तो मेटल सल्फेट, यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल नाइट्रेट, ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल नाइट्रेट विथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर। सो सी हियर कि आपको HCl और H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ओके, बट जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म नहीं होती, ओके, ये चेंज आपको याद रखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले वन बाय वन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर H2SO4 और फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन देखेंगे, ओके, विथ HCl। अगर हम यहाँ पे मेटल्स ले लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया है मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। अब मैग्नीशियम और ये क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम मेटल है और ये क्लोराइड, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, सो यू कैन मल्टीप्लाई हियर 2। नाउ वन मोर एग्जांपल, वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल कि लाइक अगर आप यहाँ पे सोडियम लेते हो, सोडियम प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 इन HCl, सो अगेन कैन मल्टीप्लाई बाय 2 हियर एंड हियर, ओके। सो इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हो कि जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl से रिएक्ट होता है तो आपको इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दैट इज मेटल क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। नाउ सेकंड स्टूडेंट्स, सेकंड में हम क्या करेंगे, मेटल्स ले लेंगे, ओके। सो लाइक सेम, मैं यहाँ पे जो मैग्नीशियम लिया है यहाँ पे भी हम मैग्नीशियम को ही प्लान करते हैं, बट नाउ अब एसिड हमारा चेंज होगा, एसिड कौन सा होगा, H2SO4। देखो इस रिएक्शन को समझो, मेटल विथ H2SO4 टू फॉर्म मेटल सल्फेट, ओके। तो आपका मेटल क्या है, मैग्नीशियम, सो कैन राइट हियर मैग्नीशियम और सल्फेट दैट इज SO4, हो गया ये आपका मेटल सल्फेट दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, बस इसी को आपको याद रखना है, ओके। नाउ second, again we take the same metal that is Na and change the reactant HCl की जगह हम ले लेंगे H2SO4, so we get what, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे ट्वाइस से। अब जैसे यहाँ पे अगेन आपके सामने क्वेश्चन होगा, मैग्नीशियम और सल्फेट MgSO4 और यहाँ पे Na2SO4 क्यों, बिकॉज Mg के ऊपर +2 और SO4 के ऊपर -2, equal charge with opposite sign, so we can write one time MgSO4, but like in case of Na and SO4 -2 and +1, so take cross multiplication, Na2SO one time, that is 4, okay, done, okay। Now the third part, अब थर्ड रिएक्शंस हम देखेंगे बच्चों, जो होगी हमारी मेटल नाइट्रेट के साथ में, अंडरस्टूड, मेटल नाइट्रेट के साथ में हमें रिएक्शंस देखनी है, ओके। एंड द थर्ड विथ नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन क्या है, ओके स्टूडेंट्स। तो सेम वी टेक अनदर एग्जांपल, विथ नाइट्रिक एसिड के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे कॉपर, सो नाउ कॉपर रिएक्ट विथ HNO3, ओके। अगर हमारा कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है, सो किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मेटल नाइट्रेट, ओके, तो यहाँ पे है कॉपर NO3 नाइट्रेट
NO3 ट्वाइस। ओके, अब NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है और कॉपर के ऊपर है +2 चार्ज। ओके, तो NO3 हो गया ट्वाइस, दैट इज NO3 ट्वाइस, और कॉपर सिंगल 1 टाइम, सो यू कैन राइट ओनली दिस। तो ये हो गया कॉपर नाइट्रेट प्लस प्लस क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 प्लस, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो विल टेक द सेम, जस्ट रिवाइज again and balancing this reaction. See here, copper react with HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपका यहाँ पे जो कॉपर होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, दिस इज इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, अंडरस्टूड? And here we use the concentrated, okay, concentrated nitric acid. This is a reaction with concentrated nitric acid. Okay, so यहाँ पे आपका फॉर्म होगा cuprous nitrate CuNO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 4 of HNO3, okay, now twice of NO2 and twice of H2O. So इस तरीके से रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन को कंपेयर कर लो। ऑलरेडी एक चैप्टर हमारा 10th में है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, सो वही सेम रूल अप्लाई करके आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स जस्ट रिकॉल दिस टॉपिक। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेटल्स को सेम प्लान किया, एसिड्स चेंज किए, हमने यहाँ पे मिनरल एसिड्स लिए हैं। अंडरस्टूड? सो मिनरल एसिड्स के साथ में जो हमने रिएक्शंस देखी मिनरल एसिड्स के साथ में हमने जो रिएक्शंस देखी, पहली रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ में देखी है। ओके, फर्स्ट रिएक्शन हमने जो देखी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ में, सेकंड रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और थर्ड रिएक्शन हमने HNO3 के साथ में। तो यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी मिली फर्स्ट टू रिएक्शंस में, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl एंड H2SO4 के साथ में। सो वी गेट मेटल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने मेटल मैग्नीशियम लिया है, सो दे फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने मेटल metal sulfide, so we get a magnesium sulfate. Okay, SO4 that is sulfate. When you use S, जब हम उसको हम कहेंगे सल्फाइड, दिस इज अ सल्फाइड, और SO4 होता है सल्फेट, तो यहाँ पे होगा मैग्नीशियम सल्फेट। When you use सोडियम मेटल we get a सोडियम क्लोराइड, और H2SO4 के साथ में सोडियम सल्फेट मिलेगा, यहाँ पे HCl के साथ में सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ओके, बट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अंडरस्टूड? ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो नाउ ये होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट, हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेटल की रिएक्शंस प्लान की। M फॉर मेटल यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, दिस इज अ मेटल। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा, ओके, मेटल्स विथ ऑक्सीजन, फिर हमने रिएक्शन देखी मेटल विथ वाटर इन लिक्विड स्टेट, फिर मेटल विथ वाटर इन gaseous state. Okay, now metal with hydrochloric acid, now metal with sulfuric acid, and the third one is metal with nitric acid. Okay, so यहाँ पे हमें मिला है बच्चों मेटल ऑक्साइड। ओके, जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया हम लोगों ने तो हमें मिला मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हमें मिला था हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब लिक्विड के साथ में रिएक्शन हुई तो, बट जब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ओके सॉरी लेस नहीं, लेस रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन ही नहीं होती, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ में हमारी रिएक्शंस हुई तो उसमें हमें मिला मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस। जब मेटल हमारा रिएक्ट हो गया HCl के साथ में, ओके, सो दे फॉर्म मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
जब मेटल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट हो गया तो यहाँ पे मिला हमें मेटल सल्फेट, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड द लास्ट वन, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन की है बच्चों, तो यहाँ पे हमें मिला मेटल नाइट्रेट, ओके, मेटल नाइट्रेट, प्लस हमें मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 और वाटर, ओके। सो आप ये दो रिएक्शंस को अगर देखोगे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होता और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होता, तो ऑलमोस्ट मेटल विथ वाटर, मेटल विथ स्टीम। अब यहाँ पे आपका मोर रिएक्टिव मेटल होगा, यहाँ पे आपका मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होगा। एंड दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स, ठीक है, ऑल टाइप्स के लिए ये यूज होगा, ओके। सब यहाँ पे वाटर गैसियस, लिक्विड और गैसियस स्टेट में ही मोर एंड मॉडरेटली रिएक्टिव रिस्पेक्टिवली हम यूज करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये सेशन में हम लोगों ने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है, ये सारे रिएक्शंस हम लोगों ने देखे। अगर आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हो तो ये रिएक्शन आपके लिए इजी रहेगी याद रखने के लिए, ओके। सो नाउ यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, थैंक यू।